ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہماری تفسیر سورۃ البینہ میں جاری ہے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں اس کی آیت نمبر 5 دی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، اور لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو، حنفاء اسی یکسو ہو کر، یعنی صرف اسی سے امیدیں لگاتے ہوئے، اسی سے تعلق جوڑتے ہوئے، ہر چیز سے کٹ کر، اس سے علیحدہ ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی ہے جو دین ہے صحیح اور سچا اور راست دین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جو ایمان اور کفر کے حوالے سے دو گروہ ہیں ان کا بیان کیا اور ان کا انجام بیان کیا، دنیا کے اندر بھی ان کی حالت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم یہ سبھی جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا جس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے۔ سورۃ کے شروع میں پہلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ کافر ہیں، اور اس آیت میں پھر سے اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کون ہے، کافر ہیں، یہود و نصارہ کافر ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے توحید ایمان پر تھا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد جو آپ پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہو چکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اہل النار، کہ اس امت کا جو بھی کوئی یہودی نصرانی میرے بارے میں سنتا ہے کہ میں اللہ کے نبی بن کے آ چکا ہوں، اور پھر بھی میرے لائے ہوئی دین پر، قرآن سنت پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ جہنمی ہے، جہنم والوں میں سے۔ اور ہم نے سابقہ آیت میں بھی بیان کیا تھا کہ یہ وہ عقیدہ ہے قرآن کا جو ہمیں یہود و نصارہ کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ کرسچن، جو یہود و نصرانی یہ سبھی کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ کیونکہ آج ہم جن فتنوں کا شکار ہیں اس میں ایک یہ بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، کہ جتنے بھی آسمانی دینوں کو ماننے والے سب ایک ہیں، وہ دین ابراہیمی کے نام سے ایک نیا دین بنانے کی کوششیں چل رہی ہیں، بلکہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو ضرورت ہے اس فتنے کو جاننے کی، اس گمراہی کو پہچاننے کی، اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھنے کی کہ جو یہود و نصارہ کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے، اس لیے کیونکہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور قرآن کو جھٹلانا کھلا کفر ہے۔ اللہ نے صرف اس صورت میں نہیں، کتنی جگہوں پر یہود و نصارہ کے کافر مشرک ہونے کا دو ٹوک طور پر بیان کیا ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ اللہ کو ایمان ماننے کا دعویٰ کرتے بھی ہوں، کچھ نبیوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے بھی ہوں، آخرت پر ایمان، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو طرح طرح کے کفر و شرک کے انداز ہیں۔ تو ان کافروں کا جو یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے ہے، والمشرکین اور ان کے علاوہ باقی جو دنیا کے مشرک ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر یہود و نصارہ بھی باقی مشرکوں کی طرح مشرک کافر ہیں تو پھر ان کو الگ سے کیوں ان کا ذکر کیا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کہ تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ تو اللہ کو مانتے ہیں
ये तो क़यामत पर ईमान रखते हैं, ये तो नबियों को मानते हैं। तो अल्लाह ने इसलिए उनका अलग से जिक्र करके उनको काफिर करार दिया, ताकि कोई ये न कहे कि आम मुशरिकों की तरह नहीं। तो ये सभी अहले किताब हो या कोई आम मुशरिक बुत परस्त जो और किसी दीन पर चलने वाले हो, दुनिया के अंदर इनका और आखिरत में इनका इंजाम क्या है? वह आखिरत में इनका इंजाम क्या है? फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होंगे। फी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में होंगे, खालिदीन फीहा, जिसमें हमेशा रहेंगे। और जहन्नम में हमेशा रहने वाला वही होता है जो काफिर या मुशरिक है। क्योंकि तौहीद परस्त मुसलमान अगर उससे को बड़े बड़े गुनाह हो भी जाएं और उन गुनाहों की तौबा किए बगैर मर जाए, तो अल्लाह ताला की मर्जी मशीयत पर है। अल्लाह ताला चाहे तो उसको अपने फजल से, अपने एहसान से उसको जो है माफ़ कर दे, और चाहे तो अपने अदल के साथ उसको अदाब दे, जहन्नम में डाल दे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहने वाले वही है जो काफिर है। तो इस आयत में इस जुमले के अंदर मजीद ताकीद आ गई कि अहले किताब काफिर हैं कि जिनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। इसी तरह हर मुशरिक काफिर, उनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। अगरचे अपने तौर पर कितने भी अपने आप को जन्नती होने के क्यों न दावे करते फिर, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है यहूद और नसारा के बारे में ही। तो उन्होंने कहा कि जन्नत में जाएगा वही जो यहूदी नसारानी होगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया कि जहन्नमी है, हमेशा के जहन्नम में रहने वाले हैं। तो इंसान के अपने मुंह में मियाँ पिछू बनने से कोई जन्नती नहीं बन जाता जब तक उसके जन्नत में जाने वाले अमल ना हो। और इसमें बहुत बड़ी तंबीह है ऐसे मुसलमानों के लिए भी कि जिनका इस्लाम सिर्फ नाम का है, सिर्फ दावा है इस्लाम का, हकीकत नहीं है। क्योंकि यहूद और नसारा भी अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं लेकिन हकीकत नहीं है। तो अल्लाह ताला हकायक को देखता है, अमल को देखता है, नामों को नहीं देखता, नारों को नहीं सुनता कि नारा कौन को क्या लगाता है, लेबल नहीं देखता कि किसने अपने ऊपर क्या लेबल लगाया है। अल्लाह ये देखता है कि किसका अमल क्या है। इसलिए यहूद और नसारा के भी लेबल, उनके नाम, उनके दावे काम ना आए, बल्कि उनको दो टोक जहन्नमी करार दिया गया। ये तो उनका आखिरत में इंजाम है। दुनिया में उनका हाल क्या है? वह उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये वो लोग हैं जो सबसे बदतरीन मखलूक हैं। शर के माने बदतरीन, बरिया माने मखलूक। ये वो लोग हैं कि जो सबसे बदतरीन मखलूक है। मालूम हुआ कि काफिर मुशरक कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी कौम, किसी भी रंग नस्ल का क्यों ना हो, वो सबसे बदतरीन मखलूक है। बदतरीन मखलूक होने का माना क्या है कि अल्लाह के जो भी मखलूक़ात हैं उनमें से कोई घटिया से घटिया अगर मखलूक हो सकती है तो काफिर मुशरिक उससे भी घटिया, उससे बदतर है। अगर हमारे नज़दीक कुत्ता और सूअर, गटर के कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीज़ें घटिया तरीन समझी जाती हैं, तो अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक काफिर मुशरिक उन गटर के कीड़ों से, कुत्तों सूअरों से बदतर है। ये भी वो अकीदा है कुरान को जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। जिस अंदाज से आज काफिरों को सरों पर उठाए फिरते हैं, उनको बड़े तो वक़ार दिए जाते हैं, बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं और बड़ी उनको इज्जत अफजाई की जाती है। कुरान और सुन्नत को, कुरान को पढ़ने वाले को समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला जिनको बदतरीन मखलूक कह रहा है उनको सर पर बिठाते हो, उनको ये इज्जतें देते हो। इसलिए हमारे यहाँ इस्लाम में एक बहुत अहम अकीदा है, क्या? दोस्ती और दुश्मनी का, कि मोहब्बत किससे हो, इज्जत किसको देनी है, और दोस्तियाँ किन के साथ हों, और कौन है कि जिनसे दुश्मनी होनी चाहिए, जिनसे बुग़्ज़ नफ़रत होनी चाहिए, और जिनको घटिया हक़ीर समझना चाहिए। तो मुसलमान मोमिन है कि कितना भी फ़कीर गरीब क्यों नहीं, लोगों की नज़रों में कितना भी दुनिया के लिहाज से गिरा हुआ क्यों नहीं, लेकिन ईमान पर है, तौहीद पर है, सुन्नत पर है, नेकी तक़वे पर है, तो अल्लाह का वली है, अल्लाह का बंदा है, मोमिन है। उसकी दिल में इज़्ज़त होनी चाहिए, उसके लिए एहतराम होना चाहिए, और उसको जो है ऊँचा करना चाहिए। और यही वो मनहज है जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है।
बिलाल हबशा के रहने वाले गुलाम हैं, काला रंग है, फ़कीर गरीब हैं, लेकिन ईमान है, तो उनको इस्लाम ने क्या मुकाम दिया। सलमान फ़ारस के रहने वाले, फ़ारसी अजमी, आपने कह दिया, फरमा दिया कि सलमान मिन्ना अहल बैत, के सलमान हम अहले बैत में से है, कि किसी को ये ना हो कि ये तो अजमी है, ये तो अरबी नहीं है, ताकि किसी की गलतफहमी दूर हो जाए। अगर मुसलमान है, मोमन है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला किसी का हस्ब नस्ब नहीं देखता। वो हस्ब नस्ब क्यों देखेगा? उसने तो खुद बंदों को खुद पैदा किया किसी खानदान में। आदमी खुद तो पैदा नहीं हो गया, अल्लाह ने पैदा किया किसी खानदान में, कि ऊंचा या नीचा कोई भी है, वो तो अल्लाह ताला की देन है। इसलिए अल्लाह ताला ना हस्ब नस्ब को देखता है, ना माल दौलत देखता है, ना शक्ल सूरतें देखता है। अल्लाह देखता है तो अमल देखता है। इसलिए मैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुमने सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ वो है कि जो ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार है। तो बात कर रहे थे कि इस्लाम के अहम तरीन अक़ीदों में से जो अक़ीदा क्या है कि दोस्ती उसके साथ हो जो अल्लाह का दोस्त है, मोहब्बत उसके साथ हो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। ईमान वाला, तौहीद सुन्नत पर चलने वाला, तक़वा परहेज़गारी पर, चाहे वो दुनियावी लिहाज से कितना भी कमज़ोर घटिया क्यों ना समझा जाता हो, इससे मोहब्बतें हों, इसके लिए इज़्ज़त हो, इसके लिए जो है दिल में इज़्ज़त अफजाई हो। और अगर कोई अल्लाह का दुश्मन है, काफिर है, बेईमान है, चाहे वो असल काफिर है या मुसलमान कहलाकर काफिर वाले काम कर रहा है, तो उसके लिए दिल में नफरत हो, दुश्मनी हो, बुग़्ज़ हो। और ऐसे लोगों को जो अल्लाह ने हैसियत दी है, वही हैसियत हमें उनको देना चाहिए। अल्लाह ताला तो उनके बारे में कहे कि सबसे बदतरीन मखलूक है, और हम उनको मुसलमानों पर भी मुकद्दम करें, मुसलमानों पर भी उनको तरजीह दे दें, और मुसलमानों से भी आगे कर दें उनको, बल्कि बावक़ात मुसलमानों के ऊपर उनको मुसल्लत कर दें। आज अगर देखा जाए इस मौजूद को, तो इसमें क्या क्या गलत अंदाज है जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, कि किसी काफिर को सुपरवाइज़र, मैनेजर या ऐसी चीज़ों का ओहदा दे देना कि उसके मातहत मुसलमान वर्कर काम कर रहे हों, कि काफिरों के ऊपर आर्डर जारी कर रहा हो। ये सिर्फ आज की तारीख हमको बताती है, इस्लाम की तारीख में आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलेंगी। इस्लाम की तारीख में तो ये होता था कि किसी काफिर को और तो और उसको लीडरशिप देना, कोई बड़ा ओहदा देना, मनसब देना तो दूर की बात है, बल्कि किसी काफिर को आमतौर पर किसी छोटे मोटे काम के लिए भी नहीं रखा जाता था, सवाए गुलामों के जो काम उसे लिए जाते थे। हज़रत उमर फारूक के दौर में कूफा के गवर्नर मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास कोई सेक्रेटरी था उनका क्रिश्चियन। तो उमर फारूक को पता चला, तो मुगीरा इब्न शुअबा को कहा कि इसको अपने पास से निकालो, को मुसलमान सेक्रेटरी रखो। तो मुगीरा कहने लगे कि हमें इसकी दीन से क्या, हमें तो इसके लिए जो लिखना पढ़ना मामला ये चीज़ हमें सिर्फ ये चीज़ें हमसे चाहिए इससे, ये दीन अब इसका काफिर कोई भी हमें से क्या। तो मेरे फारूक ने सख्ती से उनको कहा, मुगीरा फरमाते हैं कि बड़ा एक्सपर्ट है अपने मामलात में इन चीज़ों के अंदर। तो मेरे फारूक फरमाते हैं कि समझो कि ये मर गया, यानी अगर मर जाता है तो तुम्हारा काम चलेगा नहीं चलेगा, अगर इसके मरने के बाद चल सकता है तो अभी भी चल सकता है, तो उसको भी फारिग करो। कहने का मकसद उमर फारूक ने एक सेक्रेटरी के तौर पर भी उस नसरानी को, क्रिश्चियन को बर्दाश्त न किया कि किसी मुसलमान का सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाला हो, जय कि उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर मैनेजर के अंदाज से इस अंदाज से हो। तो बात कर रहे थे कि ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल इस्लाम या कि इस्लाम बुलंद होना चाहिए, ना कि किसी काफिर को उसके ऊपर आना चाहिए। तो ये है काफिर की हैसियत जो अल्लाह ने यहाँ पर बयान की है, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि काफिर मुशरिक दुनिया की कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक हैं, घटिया तरीन मखलूक हैं। तो अल्लाह ने जो उनको हैसियत दी है, अल्लाह को मानने वालों को भी चाहिए कि उनको वही हैसियत दे। अल्लाह ने जो उनको दुनिया के अंदर जिस अंदाज से उनके कुफर की वजह से उनको जो मुकाम जो हैसियत दी है, हमें चाहिए कि हम उनको वही समझे जो अल्लाह ने उनको मुकाम दिया है। उसके बाद माया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया,
इन काफिर मुशरिकों के बरखिलाफ जो ईमान लाए वामिलुस्सालिहात और नेक अमल किए, जो ईमान लाए तौहीद पर चले, सुन्नत पर चले और नेक अमल किया, उलाइका हुम खैरुल बरिया, हाँ ये वो लोग हैं जो कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक है। ईमान लाए, नेक अमल किया, किसी भी कौम कबीले से हो, किसी रंग नस्ब से हो, गरीब फ़कीर हो, कैसे भी क्यों ना हो, ईमान है, नेक अमल है, तौहीद है, सुन्नत है, तकवा परहेजगारी है, अल्लाह फरमाता है उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये वो है कि कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक है। और बेहतरीन मखलूक़ात में अल्लाह की सारी मखलूक़ात आ जाती हैं, उनमें सबसे बेहतर ये है। और अल्लाह की मखलूक़ात में फ़रिश्ते भी हैं, तो क्या मोमिन मुसलमान तौहीद और सुन्नत पर चलने वाला मुत्तकी परहेज़गार फ़रिश्तों से बेहतर है? अगर असलियत के लिहाज से देखा जाए तो कोई शक नहीं कि फ़रिश्ते नूर से पैदा हुए हैं और इंसान मिट्टी से है, और नूर रोशनी मिट्टी से बेहतर है। इसी तरह अगर ये देखा जाए कि फ़रिश्ते तो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे होते हैं, वो तो अल्लाह की नाफरमानी करते ही नहीं हैं, और इंसान कितना भी नेक मुत्तकी क्यों ना हो, परहेजगार क्यों ना हो, उससे नाफरमानी तो हो जाती है, समझे ना। तो फिर यहाँ से तो ये पता चलता है कि फ़रिश्ते बेहतर हैं। और यही बात उलमा का कहना है कि चूँकि फ़रिश्तों की असलियत भी, उनकी असली खिलकत भी नूर से है, और वैसे भी हर वक्त उनका काम अल्लाह की इबादत है, नाफरमानी करते ही नहीं कोई भी किसी तरह भी, तो इस लिहाज से इंसानों से बेहतर है, हत्ता कि नेक मोमिन मुत्तकी से बेहतर है। लेकिन जो सही कौल है, सही बात है, वो क्या है कि अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक, अपनी बात नहीं, अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक उलाइका हुम खैरुल बरिया, ईमान वाले नेक अमल करने वाले सबसे बेहतरीन मखलूक है। इस आयत की रूह से मोमिन मुसलमान मुत्तकी परहेजगार फ़रिश्तों से बेहतर है। लेकिन आप कहेंगे कि मोमिन मुत्तकी आखिरों से गुनाह तो होते हैं, फ़रिश्तों से बेहतर कैसे हो गया? मिट्टी से पैदा होने वाले रूह से बेहतर कैसे हो गया? ये बेहतरी और बेहतर करार देना हमारी तरफ से नहीं है, अल्लाह ने इसका फैसला किया है, अल्लाह ने इसका फैसला किया है। और दूसरी बात कि एक वो शख्स कि जिसको गुमराह करने वाला कोई हो ही ना, जिसके अंदर कोई गलत काम करने का इरादा हो ही ना, बल्कि गलत काम करने का उसके पास कोई चॉइस ही ना हो, और दूसरा शख्स कि जिसके पास गलत काम करने का इरादा, चॉइस भी हो, इख्तियार भी हो कि तुम नेकी करो या बुराई करो, तुम्हारी मर्जी है, और फिर उसके पीछे तरह तरह की चीज़ें हों जो उसको गुमराह करने वाली हो। यानी इंसान के पीछे शैतान लगा है जो हर वक्त उसको गुमराह करने पर तुला है। इंसान के बल्कि अंदर नफ्स अमारा बिस्सू है जो हर वक्त उसको गुनाह पर उकसाता है। यानी इंसान के अंदर जो भी बुरी ख्वाहिशात उठती हैं, कहाँ से उठती है? उस नफ्स अमारा से, कि जो उसको गलत चीज़ों पर हुक्म देता है, उस पर उभारता है। इंसान की ज़रूरियात हैं, इंसान की ज़रूरियात, बाज़ औक़ात आदमी को गलत काम करता है किस लिए कि उसकी मजबूरी होती है, ज़रूरत होती है। अगरचे इस्लाम इजाज़त देता है कि आदमी किसी मजबूरी की, सख्त मजबूरी के हाथ में कोई हराम चीज़ कर ले, उसके लिए हराम नहीं होगी, उसके लिए हलाल होगी। आदमी भूखा मर रहा है, मुर्दार खा ले, कुछ तरह की हराम चीज़ खा सकता है ताकि अपनी जान बचा ले, उसके लिए हराम नहीं होगी, हलाल होगी। लेकिन बात कर रहे थे कि इंसान को गुमराह करने के लिए उसका नफ्स अम्मारा है, उसके पीछे शैतान है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसका माहौल मुआशरा है, चारों तरफ से गलत जो उसको मशवरे मिलते हैं, गलत उसको चीज़ों के गलत रास्ते उसको दिखाए जाते हैं। तो जिस इंसान के चारों तरफ ये गुमराहियाँ हों, चारों तरफ फितने हों, चारों तरफ उसको गुमराह करने की चीज़ पर चीज़ें तुली हों, और फिर वो अपने आप को बचाता है इन बुराइयों से और नेकी पर लगाता है, क्या ख्याल है? असल ये नेकी है, असल ये नेकी है। उलमा फरमाते हैं कि वो शख्स जिसके दिल में बुराई का इरादा आए ना, उसके यहाँ बुराई का मौका ही नहीं है। और दूसरा शख्स कि जिसके यहाँ बुराइयों के मौके हैं और दिल में बुराइयों के इरादे भी आते हैं, लेकिन फिर वो बुराई से बचता है,
हाँ, ये दूसरा शख्स बेहतर है, अगरचे पहला बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उसके यहाँ चूंकि बुराई का इरादा नहीं, बुराई का उसके पास मौका ही नहीं है। और दूसरा वो शख्स जो बुराइयों में घिरा हुआ है और बुराई के मौके उसके आसपास हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा के चल रहे हैं। हाँ, कोई शक नहीं कि दूसरा बेहतर है। इसी तरह इंसान और फरिश्ते के लिहाज से भी देखा जाए तो फरिश्तों को कोई चीज़ गुमराह करने वाली नहीं, उनके पीछे कोई शैतान नहीं लगा हुआ, उनके दिलों के अंदर कोई नफ्स अमारा नहीं कि जो उनको बुराई पर रखा है। और फरिश्तों की कोई जरूरत हाजत है ही, ना खाने पीने की, ना रहने सहने की, ना कोई शादी ब्याह, कोई ऐसी चीज़ें है ही नहीं जो इंसानों के साथ है। अल्लाह ने उनको पैदा किया है और जब से पैदा किया है वो अल्लाह ताला की जिक्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि फरिश्तों के यहाँ बुराई करने के इख्तियार ही नहीं, उनके यहाँ बुराई करने के इख्तियार ही नहीं है कि तुम नेकी करो या बुराई करो, उनको अल्लाह ने नेकी पर लगाया हुआ है। दूसरे अल्फाज में आप ये कहिए कि जिस तरह हम सांस लेते हैं बगैर अपने हमारे इरादे के सांस आ जा रहे हैं, ऐसे ही फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अपने जिक्र पर नेकी पर लगाया हुआ है, उस पर लगे हुए हैं। ये नहीं कि अपने इख्तियार से लगे हैं, अल्लाह के लगाने पर लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी नेकियां उनके अपने इख्तियार से नहीं है, उनकी बुराइयों से बचना उनके अपने इख्तियार से नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनको लगाया इस चीज़ पर है। इसमें कोई शक नहीं कि हर वक्त नेकी पर लगे हैं, लेकिन इंसान जो बुराइयों से बचकर नेकी पर लगता है, असल ये नेकी है, असल ये नेकी है। इसे फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये सबसे बेहतरीन मखलूक है। और यहाँ से हमें अपने मुकाम, अपनी हैसियत को जानने की ज़रूरत है कि अगर नेक आदमी, तक़वे परहेज़गारी पर चलने वाला, नेक अमल करने वाला फरिश्तों से भी बेहतर हो सकता है, फरिश्तों से बेहतर है, तो फिर अपनी मुकाम, अपनी हैसियत को हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं। अशरफुल मखलूक़ात का लफ्ज़ हम कहते सुनते रहते हैं, वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं, हकीकत है। लेकिन इस मनसब को, अगर इतना बड़ा मनसब है तो इसकी कदरदानी करने की भी ज़रूरत है। हाँ, बड़ा मनसब अगर किसी को मिलता है तो अगर उस मनसब का वाक़ई ही पास करता है, उसके मुताबिक चलता है, तो उसके पास रहता है, वरना उससे छीन लिया जाता है। कुरान करीम उठाकर देखिए, अल्लाह ने कितनी कौमों को एक वक़्त में अरूज दिया, बल्कि ज़माने के लोगों पर उनको अफजल बना दिया। लेकिन जब अल्लाह ताला की दी हुई इस कदर मंज़रत को न पहचाना और इसके मुताबिक न चले, अल्लाह ने उनको गिरा कर दुनिया में ज़लील ख़ार कर दिया। इसलिए अल्लाह की तरफ से अगर कोई मनसब मिलता है, मुकाम मिलता है, तो उसका तकाज़ा है कि इंसान को उस मुकाम के मुताबिक अपने आप को बनाए, उसके मुताबिक अपने आप को चलाए। तुम्हारे इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये है जो सबसे बेहतरीन मखलूक है। और हमेशा पहले भी हम जिक्र करते हैं कि आमनू से मुराद वो ईमान जो सच्चा ईमान है, कि जो शिर्क से पाक है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ईमान का तकाज़ा करता है जिसमें शिर्क की मिलावटें ना। और आमिलुस सालिहात, वो अमल जो नेक, और नेक अमल कौन सा है? जिसमें दो बड़ी शर्तें, क्या क्या है? अल्लाह के लिए खालिस हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो, ये है जो नेक अमल है। तो जो ये कर इस रास्ते पर चलने वाले हैं, अल्लाह पाते कि ये है जो सबसे बेहतरीन मखलूक है। बारक अल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर।